Hello students of class 9th. Firstly, I welcome to all the students in my today video. Today before you peoples, I am going to start the chapter number 7, triangles, which is based on congruency. My dear, there is a question that what is congruent? Means क्या है congruent का? My dear, congruent figures are those figures which have a same shape and same size. ऐसी फिगर जिनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है वो congruent फिगर कहलाएंगे. congruent फिगर two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. ऐसी फिगर जिनकी शेप और साइज सेम है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी. फॉर एग्जांपल्स, two circles both having radius 1 centimeter. ये दो सर्किल हैं, दोनों की शेप सेम है और दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है. इट मीन्स दोनों का साइज भी इक्वल है. इट मीन्स दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. एंड माय डियर, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज दिस. ये congruent का symbol है. This is the symbol of congruent. If this circle is congruent to this circle, then by this symbol we can denote the sign of congruent. This is the sign of congruent. Similarly, two triangles, two equilateral triangles, you can take each side suppose 2 centimeter. इक्विलेटर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर है. सिमिलरली इस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड भी क्या है? 2 सेंटीमीटर है. दोनों की शेप सेम है, मीन्स दोनों ही ट्रायंगल हैं और जो साइज है, जो लेंथ है साइड्स की, वो भी क्या है? इक्वल है. तो ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज इक्वल होगा उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर. बट देयर इज अनदर क्वेश्चन which is related to class 10th कि if those figure which have a same shape. my dear, दो सर्किल लिए हमने, एक सर्किल का रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर है और अनदर सर्किल का रेडियस सपोज 3 सेंटीमीटर है. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि these two circles have a same shape. मतलब शेप जो है दोनों की वो सेम है. जब शेप सेम है बट साइज आर डिफरेंट बिकॉज बोथ हैविंग अ डिफरेंट रेडियाई. दोनों सर्किल्स के रेडियाई डिफरेंट हैं लेकिन साइज सेम है. ऐसे ही फिगर को सिमिलर फिगर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सिमिलर फिगर. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर. ये सिमिलर का सिंबल है. सिमिलर मीन्स ऑफ two figures are said to be a similar figure if they have a same shape but different size. और ऐसी फिगर जिनका शेप और साइज इक्वल है वो congruent figure कहलाएंगी. Now there are 4 types of congruency. My dear, there are 4 types of congruency. I am going to write the types here. Firstly, side angle side. First congruency, side angle side. Second is angle side या angle side angle. Third is side and last is right hypotenuse side. There are 4 types of congruency. These 4 congruency we will study in this chapter 7, triangles. Our first exercise 7.1 is based on these first 2 types of congruency. Now before starting the first exercise, I am going to explain the congruency of first these 2 types. One is side angle side, another is angle side. Now I am going to start the explanation. We'll study these 2 types of congruency. Firstly, in first exercise
फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी साइड एंगल साइड, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड. इन एग्जामिनेशन यू कैन राइट SAS, that is side angle side. तो suppose we are having two triangles. The name of first triangle is ABC. The name of second triangle is PQR. Suppose side angle side means suppose AB side PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है. दोनों जो इक्वल साइड है उनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों इक्वल साइड का इंक्लूडेड एंगल ये वाला, इन दोनों साइड का इक्वल एंगल ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए. तो देखिए इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अगर आपने ये दिखा दिया कि AB इक्वल है PQ के, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड BC इक्वल QR, तब बाय दिस प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR. दोबारा समझ लीजिए बेटा, ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR. इफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, this side is equal to this side and the included angle of the equal sides are equal, means ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. बट देयर इज अ क्वेश्चन दैट सपोज ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन एंगल B इक्वल है एंगल Q के, देन इज इट पॉसिबल दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट? क्या ये पॉसिबल होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, लेकिन एंगल इंक्लूडेड साइड का जो एंगल है फर्स्ट ट्रायंगल में ABC में एंगल B इज इक्वल है अनदर साइड अनदर एंगल्स के, इंक्लूडेड एंगल ना होके दूसरा ट्रायंगल एंगल है, देन इज इट ट्रू दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट? इट इज फॉल्स. माय डियर, अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ये समझ लीजिए आप. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दोबारा बता दें, अगर इंक्लूडेड साइड जो इक्वल साइड्स हैं उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, सपोज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देन their corresponding parts are also equal. अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, it means from this AB साइड AB इक्वल होगी साइड PQ के, साइड BC इक्वल होगी QR के और साइड AC इक्वल होगी साइड PR के. Similarly corresponding angles are also equal, means एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के. हम इसको इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल. शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको CPCT. शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया तब एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के बाय CPCT से. एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPCT इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangles. If two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. In short, we can write in the examination CPCT, and the full form of CPCT is corresponding parts of congruent triangle. Now, it was the first rule to prove that two triangles are congruent. Now, second rule I am going to explain now. Our second rule is angle angle side. Angle angle side. शॉर्ट में लिखते हैं इसको एंगल एंगल साइड. देखिए अगेन वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स ABC और PQR. इस बार दो एंगल्स हैं. इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और इन दोनों का और
इन दोनों की जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल ना होके कोई दूसरी साइड इक्वल है, मींस जो इक्वल एंगल्स हैं उनके बीच की साइड इक्वल ना होके अनदर साइड को इक्वल है। सपोज ये साइड इसके इक्वल है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q and AC equals to PR, then these two triangles are congruent by angle side rule से। कोई दो जो एंगल्स इक्वल हैं उनकी इंक्लूडेड साइड छोड़कर कोई अनदर साइड अगर इक्वल है तो रूल कौन सा लग जाएगा? एंगल साइड। बाय एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। दोबारा समझ लीजिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड द अनदर साइड आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स इंक्लूडेड साइड इक्वल ना होके अनदर साइड इक्वल है तो रूल कौन सा लग जाएगा? एंगल साइड। माय डियर, बट देयर इज अ क्वेश्चन अगेन, इफ टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स अगर ये साइड इक्वल ना होके इनकी इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो जाती है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल A एंगल P के इक्वल है, AB साइड PQ के इक्वल है और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, मीन्स एंगल साइड एंगल, तब हमारा जो रूल लग जाएगा वो कौन सा लगेगा? एंगल साइड एंगल। तब कौन सा लगाना है? एंगल साइड एंगल। दोबारा ध्यान से समझ लीजिए, अगर दोनों इक्वल एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड गिवन है कि वो इक्वल है तो रूल लग जाएगा आपका एंगल साइड एंगल, और अगर इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है अनदर साइड इक्वल है तब रूल लग जाएगा आपका एंगल साइड। नाउ दीज टू रूल्स वी विल इंप्लीमेंट इन आवर कमिंग फर्स्ट exercise 7.1. नाउ exercise 7.1 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 7.1 which is based on page 118, exercise 7.1. The question number 1 is that in quadrilateral ACBD, एक डायग्राम, my dear students, all diagram you will draw in your fair notebook with the help of ruler and pencil. In every question you have to write given that what is given in the question. To prove what we have to prove, if there is a need of construction then you will write the construction, after that proof. Now firstly I am going to draw the figure. This is the point A, this is C, this point is B, this is D. This side is equal to this side, it is given that, and this angle is equal to this angle, it is also given that. What is given? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD में AC इक्वल टू AD ये गिवन है, एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मींस एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। शो दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है? हमें प्रूव करना है इसमें कि प्रूव दैट दिस triangle is congruent to this triangle, and after that what can you say about BC और BD? Then BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये हमको पता लगाना है। तो फर्स्टली what is given in this question? AC एक quadrilateral given है, एक quadrilateral ACBD in which this side is equal to this side, AB bisect angle A. To prove what we have to prove? हमें प्रूव करना है कि triangle ABC is congruent to triangle ABD। प्रूफ हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। प्रूफ in these two triangles I am going to implement the congruency. Firstly listen here, in these two triangles first this side is equal to this side, it is given that. Second one, angle 1 equals to angle 2 because AB bisect angle A and AB side is the common side of both the triangles. AB क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी, तो कौन सा रूल लग जाएगा?
साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वी नो दैट वेरी वेल व्हेन द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। मीन्स इन्होंने पूछा था हमसे कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन व्हाट दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल बाय CPCT से। देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ABC and triangle ABD. First, AC equals to AD. Reason you have to write in every question. AC equal to AD, it is given. Angle 1 equals to angle 2. Reason क्या है इसका? As AB bisect angle A. And third, AB equals to AB. It is a common side. It is a common side. Common हो गया तो by साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन BC इक्वल्स टू BD होगा, क्यों? बाय CPCT से। देन BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। Students, learn the full form of CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. This is the full form of CPCT. Now, the question number first is over. After that, start the question number second. The question number second, एक डायग्राम गिवन है आपको। This is the point A, this is B, this point is C and this is D. ABCD is a quadrilateral. एक quadrilateral दे रखा है आपको ABCD in which AD equal to BC. This side is equal to this side. It is given that angle DAB, this angle is equal to angle CBA means इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। एंड टू प्रूव दीज थ्री रिजल्ट्स, फर्स्टली ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के, सेकेंड पार्ट BD इक्वल टू AC एंड थर्ड पार्ट एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो देखिए इसमें प्रूफ given that what you will write in given first, a quadrilateral ABCD in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA, ये लिखेंगे given that में। to prove it is already given in the book, from the book you can write। now proof I am going to start। my dear, in these two triangles in which we have to implement the congruency, in triangle ABD and triangle BAC में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में किस में ABD इस ट्रायंगल में, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। फर्स्टली AD इक्वल्स टू BC, इट इज गिवन दैट AD इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन है। सेकेंड वन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल DAB इक्वल है CBA के, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड थर्ड, माई डियर, इन बोथ द ट्रायंगल्स ABD एंड ABC, आई थिंक साइड AB इज अ कॉमन साइड, साइड AB इज द कॉमन साइड, तो AB इक्वल्स टू AB, इट इज कॉमन। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर? साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट। एंड वी नो वेरी वेल व्हेन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो माय डियर, सेकंड पार्ट BD इक्वल टू AC। ऑब्जर्व दैट कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने करे हैं, ये इनमें हमें जो प्रूफ करना है BD और AC, BD और AC, आई थिंक दीज आर द
साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ऑब्वियसली साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट विच रूल, बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी से साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के सीपीसीटी से। ये सॉल्यूशन था माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are the equal perpendiculars to line segment AB। AD and BC इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर्स हैं लाइन AB पर। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट CD bisect AB। नाउ फर्स्टली रिमूव दिस सॉल्यूशन। This is the point B, this is the point A, this point is C, and this point is D. This is the right triangle, and it is given that कि AD और BC क्या हैं, इक्वल हैं, परपेंडिकुलर्स भी है AB पर, यानी कि ये भी AB पर, ये भी और ये लाइन दोनों की दोनों लाइंस जो इक्वल लाइंस है AD और BC वो AB पर परपेंडिकुलर, मींस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और प्रूफ क्या करना है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। माय डियर, दिस साइड एंड दिस साइड, दीज बोथ साइड्स आर द पार्ट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू माय डियर, firstly we have to prove that these two triangles are congruent. After that we can say that this side is equal to this side. Now what is given in this question, it is given that ki AD and BC are equal perpendiculars on AB. To prove, what we have to prove, हमें prove करना है कि CD bisect AB, that is this point is O, that is OA equal to OB, that is OA equals to OB. Now firstly to proving this, these two sides are equal, firstly I am going to implement the congruency in these two triangles. Now question number 3, in triangle proof. In triangle, the name of first triangle is BOC, triangle BOC and triangle BOC. My dear, I have taken first point B at which right triangle is available. So in this triangle, at what point the right triangle is available? At point A. So AOD, and the name of another triangle is AOD. Now we are observing that firstly angle, this angle is equal to this angle, each 90. So angle CBO equal to angle DAO, each 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या हैं, 90 है। सेकेंड वन माय डियर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल? इन चैप्टर माय डियर, दीज आर द टू लाइंस, AB एंड CD आर द टू लाइंस। पता है हमको वेरी वेल, ये दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो दैट व्हाट वी कैन राइट हियर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यू हैव टू राइट अ कंप्लीट वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंड थर्ड वन, BC इक्वल्स टू AD, इट इज गिवन दैट BC इक्वल्स टू AD, इट इज गिवन बाय, कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, एंगल एंगल साइड, बाय एंगल साइड से ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOD। और दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं देन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट OA इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OA बाय CPCT से। दिस इंप्लाइज CD
बाइसेक्ट ए बी। जब ये इसके इक्वल आ गई है, इट मीन्स सी डी ने ए बी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। Now question number 4. Question number 4 is that L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that what we have to prove? Prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA. एक डायग्राम दे रखा है आपको, दो लाइंस हैं, दिस इज द लाइन L और दिस इज द लाइन M. L and M are two parallel lines. These two lines are parallel. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. It is given that intersected by another pair of parallel lines P and Q. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. ये another लाइन है P और ये Q. ये भी पैरेलल हैं. ये लाइंस भी क्या हैं, पैरेलल हैं. इन दिस गिवन फिगर द नेम ऑफ दीज पॉइंट्स आर A, B, C and D. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC जॉइन AC, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है. ये प्रूफ करना है. ABC इज कॉन्ग्रेंट टू CDA. ABC CDA के प्रूफ करना है. तो देख लीजिए यहां पर, माय डियर, सपोज टेक दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज द एंगल 3 and this is angle 4. Now we have to prove that these two triangles are congruent. And what is given? It is given that line L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q at points A, B, C, D. Then we have to prove, what we have to prove? ये triangle इस triangle के क्या है, congruent है. तो देखिए proof of this question. In triangle ABC and triangle CDA में, इन दोनों को ध्यान से देखिए माय डियर. फर्स्टली एक्चुअली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मींस ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है. और दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. साइड AB is the common side in both the triangles. AC equals to AC, it is common. And 1, this is the 2, this is the 3, this is 4. Angle 1 equals to angle 2. देखिए angle 1 equals to angle 2. Why angle 1 equal to angle 2? These are two parallel lines and this is the transversal line. So ये जो angles होते हैं कौन से होते हैं, alternate interior angle से. This is a alternate interior angle से ये angle इसके equal होगा. Side AC is the common side which is available in both the triangles, and angle 3 equals to angle 4. Angle 3 equals to angle 4 again by alternate interior angle से. Now what we are observing, angle 1 angle 2 के equal है alternate interior angle से. Side AC is the common side and 3 is equals to 4. तो angle side angle से दो जो एंगल्स इक्वल है उनके बीच वाली साइड आ गई है. तो बाय एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 is that question number 5, line L is the bisector of angle A. Line L, एक diagram already it is given, figure 7.20. A line L is the bisector of angle A. B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to arms of angle A. Show that these results. देखिए dear students,
क्वेश्चन नंबर 5, इस डायग्राम में this is the point A, this is a line L, there is a point B on L, BP and BQ. Line L is a bisector of angle A. Line L angle A का bisector है, means angle 1 equal to angle 2. It is given that, actually it is given that line L angle A का bisector है, means ये angle इस angle के क्या है, equal है. BP and BQ perpendiculars हैं from B to arms of angle A. Angle A के जो arms हैं उन पर BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है. देन प्रूव दैट कि APB ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है. और सेकंड पार्ट BP इक्वल टू BQ. माय डियर, BP एंड BQ आर द पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. आफ्टर प्रूविंग these two triangles are congruent, we can say that this side is equal to this side by CPCT से. now प्रूफ करने जा रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट को. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं. देखिए, फर्स्टली माय डियर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. Angle 1 equal to angle 2 as line L bisect angle A. Second one, BQA and BPA each 90. Angle BQA equals to angle BPA each 90. It is given. And third one, side AB is a common side. AB equals to AB, it is common side. तो by angle side से, angle side से both triangles are congruent. Triangle APB is congruent triangle AQB. दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, as what we have to do in this question, we have to prove that in first part this triangle is congruent to this triangle. So in both the triangles I am going to implement the congruency. First, angle 1 equals to 2. Why they both are angles equal? Because line L bisect angle A. It means ये angle इस angle के क्या है, equal है. तो angle 1 2 के equal हो गया. Second, BP and BQ are the perpendicular, means BPA and BQA each 90. And third, side AB is the common side. तो angle side rule लगा. क्यों लगा angle side? माय डियर, जो दो एंगल्स हैं ये वाला और ये वाला, इनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है. अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाती तो रूल लग जाता एंगल साइड एंगल से. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? होप सो इट इज क्लियर. तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया. तो सेकंड पार्ट के लिए व्हाट वी कैन से, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT से. CPCT से बोथ क्या होंगे, इक्वल होंगे. जब BP इक्वल्स टू BQ हो गया, इट मींस B इज इक्विडिस्टेंस, B पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है दोनों आर्म्स से. मींस ये डिस्टेंस इसके इक्वल, इट मींस पॉइंट B is equidistance from both arms. My dear students, today we have done up to question number 5 of exercise 7.1 of chapter 7 triangles. In this video, up to question number 5, complete in your fair notebook and do example based on this first exercise. There are 3 examples related to first 2 rules, side angle side and angle side. Up to that, thank you. Have a good day, beta.